ایک چھوٹے سے گاؤں میں خرم جان نام کا ایک غریب دکاندار رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، مگر اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جب اللہ نے اسے جڑواں بیٹیوں سے نوازا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، لیکن اسی خوشی کے لمحے میں اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں آہستہ آواز میں کہہ رہی تھیں، افسوس، بچیاں پیدا ہوتے ہی ماں سے محروم ہو گئی۔ خرم جان چارپائی کے پاس بیٹھا بیوی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، خدمت، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ان معصوم بچیوں کا کیا ہوگا؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اس وقت خرم جان کی بوڑھی ماں بختاور بیگم آگے بڑھی۔ انہوں نے دونوں ننھی بچیوں کو اپنی گود میں لیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا خرم، فکر نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں ان بچیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ خرم جان نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، آپ ہی اب ان کی ماں بھی ہیں۔ بختاور بیگم نے دونوں بچیوں کے نام رکھے۔ یہ انوشا ہوگی اور یہ کرن۔ وقت گزرتا گیا۔ بختاور بیگم نے اپنی بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود دونوں بچیوں کو محبت سے پالا۔ وہ اکثر رات کو دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہتی، میری بچیوں، تمہاری ماں بہت نیک تھی، وہ تم دونوں کو بہت پیار کرتی۔ انوشا معصومیت سے پوچھتی، دادی، ہماری ماں کیسی لگتی تھی؟ بختاور بیگم ایک پرانی تصویر نکالتی اور کہتی، بالکل تم دونوں جیسی، بس تھوڑی سی زیادہ خوبصورت۔ کرن تصویر کو دیکھ کر مسکرا دیتی، تو پھر ہم بھی بڑی ہو کر ماں جیسی بنے گی نا؟ بختاور بیگم کے چہرے پر اداس مسکراہٹ آ جاتی۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ سال بعد بختاور بیگم شدید بیمار ہو گئیں۔ اب وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی لیٹی رہتی تھی۔ ایک دن خرم جان ان کے پاس بیٹھا تھا۔ بختاور بیگم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، اب مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، کسی کو ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ہونا چاہیے۔ خرم جان نے فوراً کہا، اماں، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بختاور بیگم نے آہستہ سے جواب دیا، میں جانتی ہوں بیٹا، مگر کبھی کبھی انسان کو مجبوری میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ چند دن بعد رشتہ داروں کے دباؤ پر خرم جان نے رحمت نام کی ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کر لی۔ شروع کے دن اچھے گزرے۔ رحمت نرم لہجے میں بچیوں سے بات کرتی۔ ایک دن اس نے انوشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ کرن خوش ہو کر بولی، سچ اموا ہے؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، ہاں، اب میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ خرم جان یہ سب دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ وہ اکثر کہتا، رحمت، تم نے میرا گھر سنبھال لیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مگر آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ رحمت کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ ایک دن کرن سے ایک برتن ٹوٹ گیا۔ رحمت غصے سے چیخی، اندھی ہو کیا؟ کچھ سنبھال کر نہیں کر سکتی؟ اس نے کرن کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ انوشا فوراً بولی، اموا ہے، غلطی سے ٹوٹا ہے۔ رحمت نے تیز آواز میں کہا، تم دونوں بہت زبان دراز ہو گئی ہو۔ اس دن دونوں بچیوں کو کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ رات کو جب خرم جان گھر آیا تو رحمت نے فوراً شکایت شروع کر دی، خرم، تمہاری بیٹیاں بہت بدتمیز ہو گئی ہیں، میری بات نہیں مانتی۔ خرم جان نے حیرت سے پوچھا، انوشا، کرن، تم لوگ امواہے کی بات نہیں مانتی؟ دونوں خاموش رہیں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ نہ بولی۔
एक दिन खुर्रम जान ने सख्त लहजे में पूछा, मुझे सच बताओ, क्या हो रहा है? अनोशा खामोश रही मगर किरण बोल पड़ी, अबू, हम सारा घर का काम करते हैं, इमुआहे हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती। रहमत फौरन चीखने लगी, देखा, मैं कहती थी ना ये मुझे मां समझती ही नहीं, हर वक्त सौतेली मां कहती है। वो जोर जोर से रोने लगी। खुर्रम जान परेशान हो गया। उसने बच्चियों को डांट दिया, बस करो, इमुआहे से मुआफी मांगो। रहमत के चेहरे पर एक खफीफ मुस्कुराहट आ गई। चंद दिन बाद खुर्रम जान को शहर में काम का मौका मिला। वो खुशी से बोला, अगर ये काम चल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अनोशा ने आहिस्ता से पूछा, अबू, आप कब वापस आएंगे? जल्द ही बेटा। मगर दोनों बच्चियों के दिल में अजीब सा खौफ था। खुर्रम जान के जाते ही रहमत का जुल्म बढ़ गया। एक दिन इसने कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ घूमने चल लो। किरण हैरान हो गई, सच इमुआहे? रहमत ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आज तुम्हें जंगल दिखाती हूं। वो दोनों बच्चियों को लाल पहाड़ी के करीब जंगल में ले गई। कुछ देर बाद वो अचानक बोली, तुम दोनों यहां बैठो, मैं अभी आती हो। और वो वापस चली गई। सूरज डूब गया, अंधेरा फैल गया। किरण घबरा कर बोली, अनोशा, इमुआहे अभी तक नहीं आए। अनोशा की आवाज कांप रही थी, शायद रास्ता भूल गई हूं। किरण रोते हुए बोली, काश हमारी मां जिंदा होती। अनोशा ने भी आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, हमारी मदद कर। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। जंगल के दरख्त हुआ के साथ सरसरा रहे थे। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अनोशा और किरण एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थीं। दोनों के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। किरण ने डरते हुए कहा, अनोशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनोशा ने अपनी बहन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डर मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किरण की आवाज कांप रही थी, लेकिन अगर वो चुड़ैल सच में यहां रहती हो तो। अनोशा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। इसी लम्हे दूर दरख्तों के दरमियान एक हल्की सी सफेद रोशनी नजर आई। किरण फौरन अनोशा के करीब सिमट गई। वो क्या है? अनोशा ने भी घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में उनके सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी और आंखों में गहरी मोहब्बत थी। वो नर्म आवाज में बोली, मेरी बच्चियों, डरो मत। अनोशा और किरण हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनोशा ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारी मां हूं। किरण चौंक कर पीछे हट गई। हमारी मां? अनोशा ने हैरानी से कहा, लेकिन हमारी मां तो मर गई थी। वो लड़की मुस्कुरा दी, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। हां बेटा, मैं तुम्हारी मां खिदमत हूं। अल्लाह ने मुझे आज तुम दोनों की मदद के लिए भेजा है। दोनों बच्चियां साकित खड़ी रह गईं। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वाकई हमारी मां है। खिदमत ने दोनों को अपने करीब बुलाया। आओ मेरे पास। दोनों बच्चियां आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए। खिदमत ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। किरण रोते हुए बोली, मां, आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? खिदमत की आंखों से भी आंसू निकल आए। वो आहिस्ता से बोली, बेटा, ये अल्लाह का फैसला था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
अनोशा ने पूछा, माँ, क्या आप हमें देखती रहती थी? खिदमत ने सर हिलाया। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को हमेशा देखती रही हूं। जब तुम रोती थी तो मेरा दिल भी तड़प उठता था। टन ने फौरन शिकायत की, माँ, वो हमें बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते। खिदमत ने इसके आंसू पोंछे, मुझे सब पता है, इसीलिए तो आज मैं तुम्हारे पास आई हूं। अनोशा ने डरते हुए कहा, माँ, हमें घर का रास्ता नहीं मिल रहा। खिदमत ने नरमी से कहा, घबराओ नहीं, सुबह होने से पहले तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा। किरण ने हैरान होकर पूछा, सच माँ? खिदमत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। अनोशा खामोशी से सुनने लगी। खिदमत ने मोहब्बत से कहा, मेरी बच्चियों, जिंदगी में कभी कमजोर मत बनना। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मासूमों को तकलीफ देते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता, अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। किरण ने आहिस्ता से पूछा, माँ, क्या आप हमेशा हमारे पास आएंगी? खिदमत ने इसके सर पर हाथ रखा। जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे दिल के करीब होंगी। अनोशा की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। माँ, क्या हम दोबारा अब से मिलेंगे? खिदमत ने प्यार से दोनों के माथे चूमे। शायद, लेकिन याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो, कभी एक दूसरे को छोड़ना नहीं। किरण ने फौरन कहा, हम कभी जुदा नहीं होंगे। खिदमत मुस्कुरा दी। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो। दोनों बच्चियां उसकी गोद में सर रखकर लेट गईं। किरण ने आंखें बंद करते हुए कहा, माँ, आपकी गोद बहुत अच्छी है। अनोशा ने भी आहिस्ता से कहा, काश आप हमेशा हमारे साथ रहती। खिदमत खामोशी से उन्हें देखती रही। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर चेहरे पर सुकून था। चंद लम्हों बाद दोनों बच्चियां सो चुकी थीं। खिदमत ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। इसी वक्त दूर सड़क पर एक गाड़ी की रोशनी नजर आई। खिदमत ने आहिस्ता से बच्चियों के सर पर हाथ फेरा और फिर धीरे धीरे वो सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गई। दूसरी तरफ रहमत घर में ड्रामा कर रही थी। खुर्रम, बच्चियां भाग गई हैं। खुर्रम जान परेशान होकर हर जगह ढूंढने लगा। अचानक एक बड़ी गाड़ी घर के सामने रुकी। गाड़ी से एक जमींदार उतरा। इसके साथ दोनों बच्चियां थीं। खुर्रम जान दौड़कर उन्हें गिले लगाकर रोने लगा। जमींदार ने रहमत की तरफ देखकर कहा, इस औरत को पहचानते हो? ये कई घरों को तबाह कर चुकी है। बच्चियों ने सारा वाकया सुना दिया। खुर्रम जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। रहमत, तुमने मेरी बेटियों के साथ ये किया। रहमत खामोश खड़ी रही। खुर्रम जान ने उसे घर से निकाल दिया। इस रात खुर्रम जान अपनी बेटियों के पास बैठा था। वो आहिस्ता से बोला, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी बात ना समझ सका। इसी लम्हे इसे सफेद लिबास में खिदमत नजर आई। वो खामोशी से खड़ी थी। खुर्रम जान रो पड़ा। खिदमत, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खिदमत ने सिर्फ इतना कहा, बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना, और फिर वो गायब हो गई। वक्त गुजरता गया। अनोशा और किरण बड़ी हो गईं। घर के हालात बेहतर हो गए, मगर खुर्रम जान ने दोबारा कभी शादी नहीं की। वो अक्सर बेटियों से कहता, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। और जब कभी दोनों बहनों को मुश्किल पेश आती, उन्हें यूं महसूस होता जैसे कहीं करीब से एक मानूस सी आवाज आ रही हो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो मुस्कुरा देती है।
کیونکہ سچ یہی ہے کہ ماں وہ ہستی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے دکھ سے بے خبر نہیں رہتی۔ وہ کبھی دعا بن کر، کبھی ہمت بن کر اور کبھی سایہ بن کر ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ رہتی ہے۔